એવું શક્ય હોય છે જીવનના જંગમાં કે દેખાય સ્પષ્ટ હાર પણ પડદામાં જીત હોય છે. આપણને એમ થાય કે એ મરી ગયા, બરબાદ થઈ ગયા, પણ જો કાચબો એમ કે આ કર તો કરવાનું. સાહેબ, અમદાવાદમાં દર મહિને 4 લાખ રૂપિયા નુકસાન કરીને ચોપડીઓની દુકાન ચલાવું છું. મહિને 4 લાખ રૂપિયા. કેમ કે કાચબો કહે છે કે સંજીયા કર. ગીતા, કુરાન, બાઇબલનું એક વાક્ય છે કે હે મનુષ્ય, કર્મ કરવામાં તારો અધિકાર છે, ફળ મેળવવામાં અધિકાર નથી. તું કર્મ કર, હું તને ફળ આપીશ. કેમ કે કર્મ અને ફળ જુદા નથી. આપણે શું કહીએ છીએ? પહેલા ફળ નક્કી કરો, પછી કર્મ કરો. હરામી નંબર 1. સાહેબ, તમને ખબર છે હોટલમાં 400 રૂપિયાની નોકરીમાં મેં 4000 રૂપિયાનું કામ કર્યું છે. 3600 રૂપિયા જમા થાય તો 3 વર્ષના જે જમા થાય, મારી હોટલ બને કે ના બને? સમજાય છે વાત? જે કરો તે બેસ્ટ કરો. 1 રૂપિયામાં 100 રૂપિયાનું કામ કરો, 99 રૂપિયા જમા થશે. ઈશ્વર તમને યોગ્ય સમય એનો બદલો આપી દેશે. તમે કહો છો કે ના, હું કહું છું 400 રૂપિયામાં 4000નું કામ કરવાનું. ન ગમે તો છોડી દેવાની, પણ જ્યાં સુધી કરો ત્યાં સુધી બેસ્ટ કરો. મેં 3 વર્ષ હોટલમાં વેટરની નોકરી કરી, મારા બાપની હોટલ સમજીને. તો મારી હોટલ બને એમાં કઈ નવાઈ ખરી? મેં જીમમાં કચરા પોતા કર્યા પ્રમાણિકતાથી, ઈમાનદારી, તો મારા 2 જીમ બને એમાં કોઈ નવાઈ ખરી? આજે મારા 121 બંગલાની સ્કીમ ચાલે કે ફ્લેટની સ્કીમ ચાલે કે હું પેલેસ ખરીદું, તેમાં નવાઈ શું છે? તારો નિયમ છે. જે જોઈએ તે કરો. મહેનત આપણા હાથમાં છે, ફળ આપણા હાથમાં નથી. એટલે પરીક્ષામાં જ્યારે ટકા બી ના આવે ને તો નિરાશ થશો નહીં, કે મહેનત આપણા હાથમાં છે, ફળ એના હાથમાં. આના માટે 3 પુસ્તકો છે: સુખ, સામર્થ્ય, સમૃદ્ધિ, આગળ ધસો ને ભાગ્યના સ્રષ્ટાઓ. મારી નથી હો, સ્વેટ માર્ટિનની છે. વાંચી જજો નસીબદાર હો તો. એટલે એક ભાઈ ઉભા થયો, તો હવે કોઈ કલવું જ નથી સંજયભાઈ, બધું ભગવાનના હાથમાં હોય તો આપણે શું કરવાનું? પેલા ગધેડા, પેલો જંગલનો રાજા મોઢું ખુલ્લું રાખે તો હરણ મોઢામાં આઈ. અરે દોડવું પડે, પકડવું પડે, અહીંથી પકડે ને છૂટી પણ જાય. આ પકડવા, દોડવું આપણા હાથમાં છે, પણ પકડાવવું કે ન પકડાવવું કોના હાથમાં છે? ઈશ્વરના હાથમાં છે. એટલે જે કરો તે બેસ્ટ કરો. નાવા બેસો ને તો સરસ નાવાનું. ખાલી નાવા બે એટલે કપડામાં ધ્યાન હોય, કપડાં પહેરે એટલે કોણ દેખશે એમાં ધ્યાન હોય, કોઈ દેખે એટલે કે કોઈ બીજું ના દેખે એમાં ધ્યાન હોય. જ્યાં હોય ત્યાં હોય જ નહીં કુદાર. આગળ જ ચાલે. લીવ ઇન પ્રેઝન્સ. જે જીવો તે બેસ્ટ જીવો. આ પૈસા કમાવાનો સરળ રસ્તો છે. પૈસા માટે મહેનત કરશો નહીં, પણ મારે બેસ્ટ ધંધો કરવો છે, મારે બેસ્ટ નોકરી કરવી. આ કરો, પૈસો જખ મારીને દોડતો હશે. પૈસા માટે મહેનત કરશો. तो अब हम सब यहां बैठे हैं. मैं आपको अगर यह प्रश्न पूछूं, हाउ मेनी ऑफ यू वांट सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ? आप हाथ ऊंचा करें. यहां बैठे हैं आप सबको मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको जीवन में हर तरह की सिद्धि चाहिए या नहीं? इफ यस, देन रेज योर हैंड्स. सबको चाहिए. लेकिन हमारे लिमिटेशंस ये हैं, सोच की मर्यादा ये है कि हम प्रोग्रेस को सक्सेस मान लेते हैं. एक सबसे बड़ी हमारी भूल है जीवन में. समझना कहीं प्रकार की प्रोग्रेस साथ में आती है तब सक्सेस बनती है. Many types of progresses they come together to bring success in life. Success is not just a good business. Success is not just a few relationships well set. Success is not just limited to a good health enjoyed. ये सब एक एक वर्टिकल्स हैं, वो प्रोग्रेस है. और कहीं प्रकार की ऐसी प्रोग्रेसेस साथ में आती है तब सक्सेस बनता है. इस प्रकार का सक्सेस हमें चाहिए. That at the end of your life, जब आप 80-90 साल के हो, तब आप अपनी छाती पे हाथ रख के बोल सके कि यस, आई लिव्ड माई लाइफ. भगवान ने मुझे ये 70-80 साल का जीवन दिया था, 5-10 प्लस माइनस भगवान की कृपा से, लेकिन वो मैं जिया. आई लिव्ड इट. इस प्रकार का एक संतोष जीवन के अंत समय में आए, दैट इज योर लाइफ वेल लिव्ड. तो उसके लिए थोड़े विचार और थोड़े अभिगम, और उस विचार और उस अभिगम को बेस बना के, फाउंडेशन बना के
कुछ स्पष्ट प्रकार की वर्तणुक भी जीवन में चाहिए। रिमेंबर, सक्सेस नेवर कम्स ओवरनाइट, इट इज वन स्टेप एट अ टाइम। मैं कई बार बात करता हूं कि आप हिमालय के ऊपर, एवरेस्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर में जा पहुंचे तो आपका फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं छपेगा। वो कब छपता है? When you go from the base and you walk from the bottom. So success is not an overnight story. It is never a one day story. तो ये विचार सबसे प्रथम जीवन में स्पष्ट करना है। आप कहीं लोग को देखते होंगे, कहीं को मिले भी होंगे कि बहुत चंद समय में, थोड़े समय में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन इनके पीछे भी उनका पुरुषार्थ तो रहता है। कोई सही विचारधारा तो रहती है, कोई स्पष्ट प्रकार के वर्तन भी रहते हैं। तो उसमें एक प्रथम विचार यह है कि भगवान ने जो हमें यह मनुष्य दे दिया है उसकी कीमत बहुत बड़ी है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो एक अलग बात है। एक स्थूल दृष्टि से आप देखें, अमेरिका में कई साइंटिस्ट ने इकट्ठे होके अगर यह मनुष्य शरीर लेबोरेटरी में बनाना है, वो भी जीवित नहीं, हां, मुर्दा, तो ये साइंटिस्ट ने कुछ प्रयोग करके ये बात बताई कि एक मुर्दा ह्यूमन बॉडी अगर बनाना है तो इट विल कॉस्ट अबाउट $5 ट्रिलियन। मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, $5 ट्रिलियन। वो भी मुर्दा। आप उसके मुंह में आइसक्रीम रखो तो पानी नहीं निकलेगा, आप उसकी प्रशंसा करो तो वो हंसेगा नहीं, आप उसका अपमान करो तो वो मूर्छा नहीं जाएगा। A dead human body is $5 ट्रिलियन। तो एक बड़ी अमानत लेके हम बैठे हैं। If you live for 100 years, अगर आप 100 साल जिए तो ये $5 ट्रिलियन की कीमत की जो मनुष्य दे आपके पास है, every second is crores of rupees। तो पहले ये सोच करनी है हमें दृढ़ कि एक बहुत अमूल्य चीज हमारे पास है, उसका सही उपयोग हमें करना है। आप एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हो, कोई सैमसंग का 9+ ले लिया, i10 ले लिया, तो उसके साथ एक बुकलेट आती है, हाउ टू यूज दिस, हाँ या ना? तो ये मनुष्य जीवन इतना, मनुष्य शरीर इतना कीमती है, उसके साथ कुछ बुकलेट आनी चाहिए ना। वो है। हमारे महान ऋषि मुनियों ने और मॉडर्न डे थिंकर्स ने, दोनों ने ये बातें की हैं, लेकिन हमने जीवन में सही तरह से स्वीकार करके, विचार करके जीवन में दृढ़ नहीं की। दिस इज अ प्राइसलेस ह्यूमन बॉडी, आई नीड टू यूज इट टू द ऑप्टिमम। ये एक विचार जीवन में दृढ़ होना चाहिए, तो कुछ आप कर पाएंगे, कुछ हासिल कर पाएंगे, एंड यू विल लीव अ सैटिस्फाइड एंड सक्सेसफुल लाइफ। ये विचार एक आया मन में, उसके बाद प्रोग्रेस और सक्सेस की एक यात्रा चालू होती है। उसमें प्रथम बात यह है कि आप जीवन में कोई एक अच्छा संकल्प करें। यू डिटरमिन समथिंग इन लाइफ कि मुझे जीवन में ये 5, 10, 15 बातें करनी है। मैं यहां आप सब बैठे हैं, आप सबको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने यहां ऐसे बैठे हो जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई समय पे हाथ में कलम लेके कागज पे कुछ 5-10 आइटम लिखी कि मुझे जीवन में ये करना है? हाथ ऊंचा करें फेथफुली। 15-20 हाथ भी ऊंचे नहीं है। तो क्या आप ये विचारधारा से जीते हैं कि चलो कल अगर उठे तो कुछ करेंगे? अगर कल भगवान की कृपा से आंख खुली तो कुछ करेंगे। तो
बैठ के थोड़ा तैर करना पड़ता है। आपकी जो रस रुचि है, आपके विचार में जो एक सोच आती है कि मुझे जीवन में व्यवसाय की दृष्टि से, पारिवारिक संबंधों की दृष्टि से, हमारे मित्र मंडल के कुछ प्रवृत्ति की दृष्टि से या समाज सेवा की कोई दृष्टि से मुझे इतनी इतनी बातें समाज में करनी है, ये एक विचार मन में दृढ़ होने तो चाहिए। और टेक अ पेन इन योर हैंड। इफ यू हैव नॉट डन टिल टुडे, व्हेन यू गो बैक होम टुनाइट, बिफोर यू गो टू स्लीप, टेक द पेन इन योर हैंड, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट समथिंग। कुछ लिखे कि मुझे ये कुछ करना है, और अच्छी तरह से चिपका देना जहां रोज बैठते हो, कुछ दृष्टि करते हो। तो रोज आपकी दृष्टि के सामने वो बात आएगी, विचार में से तो चली जाती है, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो कुछ सामने दिखेगा। Then that remains in front of you and constantly it reminds you। कहीं युवा यहां बैठे हैं, अंडर 30 के बैठे हो, हाथ ऊंचा करें। कहीं पीछे भी बैठे। अमेरिका में एक लड़का था, उसकी उम्र थी उस वक्त जब 14-15 साल का वो होगा। एक बार उन्होंने सोचा, जॉन गोडार्ड ये बालक, कि लेट मी राइट डाउन माई ड्रीम्स एंड लेट मी राइट डाउन माई एम्स ऑफ लाइफ। बैठ के लिखने लगा, एवरेस्ट पे जाना है, नाइल नदी स्विम करनी है। ऐसे लिखते लिखते ही रोट डाउन अबाउट 57 गोल्स ऑफ लाइफ। फिर तो प्रयत्न किया, उनका जीवन चरित्र बहुत लंबा है। 60 साल की उम्र में एक बार वे फिर से, वो छोटी फर्जी थी, वो उसने खोली और टिक करने चालू किया कि मैंने कितने काम पूरे किए। And to his surprise and to the world's surprise, he had completed 55 of the 57 tasks of his life. कर सकते हैं। कुछ लिख के कुछ तैर करना चाहिए। और फिर एक बार तैर किया, that becomes your life. That becomes your goal. हम सब ने सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखे, yes or no? सचिन तेंदुलकर को जब 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे हुए, तब यहां मुंबई टाइम्स ऑफ इंडिया एडिशन में एक उनके बारे में सप्लीमेंट्री प्रोड्यूस की गई थी। उसमें उनका इंटरव्यू भी था। इंटरव्यूअर ने सचिन जी को पूछा कि सर, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? आपकी सिद्धि का रहस्य क्या है? सचिन जी ने बताया कि आई नॉट ओनली प्ले क्रिकेट, I walk cricket, I talk cricket, I drink cricket, I sleep cricket, I wake up cricket. It's cricket, cricket, cricket 24/7. तभी जाके जो आज का विषय मुझे दिया गया है, अ मिलियनर यूथ, एक समृद्ध युवान, तभी जाके बन सकते हैं। फिर उन्होंने प्रैक्टिकल बात यह बताई कि there has not been a single day in my life, 20 साल का इंटरनेशनल क्रिकेट और 4 साल का डोमेस्टिक क्रिकेट, 24 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मैं सुबह 6 बजे नेट्स पे न पहुंचा और मैंने पहला बॉल फेस न किया हो। इंटरव्यूअर बहुत शार्प था। इसी उत्तर में एक प्रश्न तैयार किया और पूछा कि सर, अगर पिछले दिन आपने सेंचुरी या डबल सेंचुरी की है तो? सचिन जी ने बताया कि इवन इफ आई हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी और डबल सेंचुरी ऑन द प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग एट 6 आई एम एट द नेट्स। दिस इज हाउ यू बिकम अ मिलियनर। सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, एक धनिक युवान मुझे विषय नहीं दिया गया, समृद्ध युवान की बात हो रही है। एक स्वप्न तो हमारा सबका होता है, लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत करनी पड़ती है। And it's not a one day affair. It's not a few months affair. कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। पुरुषार्थ तो सबको करना पड़ता है। सामान्य पुरुषार्थ
से सामान्य व्यक्ति हमेशा सामान्य रहते हैं। असामान्य पुरुषार्थ से सामान्य व्यक्ति भी असामान्य बन जाती है। यह रहस्य की बात है, इतिहास के पन्ने गवाह हैं। So, whether you are the deer or the lion, every morning when the sun rises, you have to run. आप हिरण हैं या सिंह हैं, मतलब शेर हैं। आप हिरण हैं या शेर हैं, सुबह गिरी, सूर्योदय हुआ, दौड़ना तो पड़ता है। कि सचिन जी ने यह बात तो बताई, लेकिन कहा कि आई डोंट टच दी सोशल मीडिया बिफोर आई फेस 500 डिलीवरीज, मतलब 500 गेन फेस करने के बाद। तब इंटरव्यू ने पूछा कि सर आपने अगर अगले दिन सेंचुरी की है, डबल सेंचुरी की है, तो आप लालायित नहीं हो जाते कि मैं जरा देख लूं कौन से न्यूज़पेपर में मेरा कौन सा फोटो छिपा है और क्या कैप्शन लिखा है? तब सचिन जी ने एक अच्छी बात बताई, सी हाउ ग्रेट पीपल हैव अचीव्ड सक्सेस इन देयर लाइफ। उन्होंने कहा कि इफ आई डोंट प्रैक्टिस 500 बॉल्स इन द मॉर्निंग, I can see a small change, a small negative change in me the same day. उन्होंने ये बताया फिर कि अगर सोशल मीडिया देखने के लिए मैं सुबह में अपना समय व्यतीत करूं, तो मैं जहां हूं वहां रहना कठिन और मुझे अभी भी आगे पहुंचना है, वहां पहुंचना कठिन। वह एक पूर्ण विराम आ जाता है। इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, ऐसे लोग बोलते हैं। वो भी सुबह में अपनी बातें देखने के लिए व्हाट्सएप नहीं खोलते और अब सुबह सुबह में किसी और की बातें देखने के लिए खोल लेते। अब सेलिब्रिटी तो हो नहीं, हम कोई हम सेलिब्रिटी तो है नहीं। बिजली की गति से आपको व्यवसाय करना है, हाँ या ना? बिजली की गति से। इट ट्रेवल्स अबाउट 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। ये बिजली की गति है। उस गति से अगर आपको व्यवसाय करना है, बिल गेट्स अपने जीवन से, अपने जीवन में पाई हुई सिद्धि के कारण लिखते हुए उन्होंने 3 बातें इस पुस्तक में लिखी हैं। द फर्स्ट ही राइट्स दैट 3 things, the culmination of these 3 things has brought all success in my life. प्रथम ये बात लिखते हैं, डिटर्मिनेशन, जो हम बात कर रहे हैं, एक तैर करना एक बात जीवन में, एक नक्की करना एक बात, डिटर्मिनेशन इन लाइफ। दूसरी बात लिखते हैं इंटेंस हार्ड वर्क, प्रचंड पुरुषार्थ। और तीसरी बात लिखते हैं, एक अभिगम की दृष्टि से बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है। आई फेल्ट व्हेन आई वाज रीडिंग दैट, आई रेड इट 2 times, लेकिन मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी, पसंद आई। तीसरी बात जो उन्होंने लिखी है, एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर्स। हर कोने में से जहां से भी मुझे अच्छे विचार मिले, वो मैंने अपनाए अपने जीवन में, कुछ सोचा उसके बारे में और मैंने अप्लाई भी किए। तो डिटर्मिनेशन, इंटेंस हार्ड वर्क एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर्स दैट क्रिएट अ बिग सक्सेस इन लाइफ। तो संकल्प करके पुरुषार्थ करना, सद्भावना से पुरुषार्थ करना, सद्गुणों को साथ में रखते हुए पुरुषार्थ करना, सफलता तो मिलती है। यू बिकम अ। जीवन में रोज सुबह उठ के अपने आप को बोलना, until I can run, I will run. When I can't run, I'll walk. When I can't walk, I'll crawl, but I will not stop. I'll keep moving. ये सिद्धांत होता है जीवन में। Till I live, till the last breath of my life, I'll keep walking, I'll keep crawling, but I'll move. तो विश्वास रखना, थोड़ा क्रिएटिव भी होना, देखते रहना, आंखें खुली रखना, कान खुले रखने, तो कहीं बात आ जाती है। मिलियनर यूथ की बात है, एक प्रसंग बताना चाहता हूं। बेंगलुरु में एक युवक को मैं मिला हूं। ये युवक 2nd ईयर इंजीनियरिंग में था, बस स्टैंड पे खड़ा था, कॉलेज जा रहा था। तो वहां एक यंग मदर स्कूटर पे अपने छोटे बच्चे को छोड़ने के लिए आई। स्कूल बस वहां से बच्चे को लेके जाती होगी, तो थोड़ी लेट हो गई होगी, तो शी वॉज इन अ रश, जरा दौड़ रही थी,
स्कूटर पार्क किया, बच्चे को गोद में उठा, दौड़ती हुई बस के पास गई, बस में बिठा, बच्चे ध्यान रखना, जो भी नाम था चिल्ला रही थी, ध्यान रखना, ठीक से चढ़ना, जरा बैठ जाना, बैठा है बराबर, मतलब एंशियस बहुत हो गई थी। ये लड़के ने ये देखा कि ये एक यंग लेडी है, वो अपने छोटे बच्चे के लिए इतनी एंशियस हो रही है। उसमें से ये एक विचार आया कि कैन आई डू समथिंग अबाउट दिस इश्यू। कहीं ये यंग मदर्स को, अपने छोटे छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाने के लिए जब जाते हैं, स्कूल बस में जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, तो ये एक मन में एक विचार, एक तनाव रहता है। ही डिसाइडेड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर ये डिजाइन किया, 2-3 स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया। जब भी वो छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, वो सेंसर्स को टच करता है, तब मैसेज उनके मदर के मोबाइल, जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है, उस पर मैसेज जाता है कि योर चाइल्ड हैज गॉन इनटू द बस, बस में वो पहुंच गया। जब अपनी सीट पे बैठना है, तब दूसरा मैसेज जाता है, सेंसर कट होता है, तब ही इज सीटेड, वो बैठा है। वो क्लास में अगर उसने हाथ ऊंचा किया तो उससे भी सेंसर कट होते हैं, और मैसेज जाता है उसके मदर के मोबाइल पे कि आपके बच्चे ने कोई प्रश्न पूछा है टीचर ने स्कूल में, तो वो उसने हाथ ऊंचा किया है। तो इससे रिलीफ बहुत आ गई पेरेंट्स को, बिकॉज दे गेट मैसेजेस एवरी हाफ एन आवर 1 आवर कि चलो बच्चा ठीक है, बैठा है, पढ़ रहा है, खेलता है, ठीक है। ये थोड़ा प्रचलित हुआ और स्कूल्स ने ये अडॉप्ट किया, मेट्रोज में ये चल रहा है। एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी को पता चला कि ये सॉफ्टवेयर में पोटेंशियल बहुत है। ये लड़के के पास तो ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर था, कोई नेटवर्किंग सिस्टम, मार्केटिंग तो था नहीं, वो पढ़ रहा था, कोई बड़ी कंपनी तो सेटअप नहीं थी। तो ये बड़ी कंपनी ने उसको ऑफर की, एंड द फाइनल डील वाज एट $65 million फॉर दिस सॉफ्टवेयर। अभी वो कंप्यूटर इंजीनियर उसने पूरा किया, $65 million, मिलियनर यूथ बन गया ना। विचार, चलो हम यहां बैठे, अगर कहीं से कोई चूहा निकल आए, यहां तक आ जाए, ये मॉनिटर के ऊपर चढ़ जाए, यहां से दौड़ता हुआ वहां जाए, कूद के नीचे आए, फिर ऊपर आ जाए, मुझे भी अगर डिस्टर्ब करे, ऐसी क्रिया अगर आप देखें तो आपके मन में क्या विचार आएंगे? किसी के मन में अगर कोई विचार आते हो, उंगली ऊंची करें आप। ये अगर आप देखें ऐसा कुछ दृश्य, तो मन में क्या विचार आएगा? विचार ही नहीं आएगा। कुछ तो विचार आने चाहिए ना। चूहे को बाहर फेंक दो और उंगली ऊंची करे, जिसको बोलना है उंगली ऊंची करे। हस यू जेंटलमैन, सॉरी अगेन। Oh, that doesn't come in by you can put the sensors, okay? विचार तो हमारे पास कहीं के पास होते होंगे, लेकिन उंगली ऊंची नहीं करे। चलो हाँ बताए। हाँ सु सफाई बरोबर नहीं मुक्त है। वी हैव ऑल दिस काइंड ऑफ थॉट्स। लेट मी कम टू द टॉपिक। तो आपको कई प्रकार के विचार हम सबको आते हैं। ऐसा ही प्रसंग कहीं दशकों के पहले बना। अमेरिका में एक व्यक्ति बैठा था, वो एक क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में, क्रिएटिव आर्टिस्ट के रूप में अपने आप का परिचय दे रहा था, और लेकिन किसी ने उनके में क्रिएटिविटी देखी नहीं, और 2 साल में 7 जॉब्स में से वे रिजेक्ट हुए। बैठे थे, बर्बाद हो गए थे, $5 जेब में थे, 29 तारीख थी, 2 दिन के बाद घर भी खाली करना था, कहाँ जाएंगे कहाँ खाएंगे कुछ पता नहीं था। इसमें ऐसी एक घटना बनी। हाफ अ पीस ऑफ ब्रेड लेके बैठा था, एक हाफ कप कॉफी था, और चूहा आया, ऊपर आया, देखा कि अंदर क्या है। वो देख रहा था बैठे बैठे गैरेज में। चूहा ने कुछ चाय पी, तो वो बोले कि ठीक है यार, मेरे नसीब में कहीं कुछ था, लोग ले गए, आज तू ये भी ले जा चल। फिर वो हाफ अ पीस ऑफ ब्रेड भी उठाई, यूं दौड़ा, इस तरफ दौड़ा। उसमें से एक विचार आया। ही थॉट कि चूहे की ये क्रिया, इट एंटरटेन्ड मी। Can I show the same acts of this mouse to the children of the world, entertain them and make big money? इसी चूहे की यही क्रिया मैं छोटे छोटे बच्चों को पूरी दुनिया में दिखाऊं, उनको खुश करूं, और उनके माता पिता के पास से बहुत बड़े पैसा कमा सकता हूं। और इस विचार में से पैदा हुआ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर ऑफ मोशन पिक्चर, मिकी माउस। अब सबके मन में मिकी माउस शब्द में वॉल्ट डिज्नी भी आ गया। पहले मैंने पूछा तब क्यों नहीं आया?
मुझे सब आपको यही बात सिखानी है कि अगर आप अपने जीवन में थोड़ी आंख खुली रखेंगे, कान खुले रखेंगे, क्रिएटिविटी जीवन में रखेंगे कि नित्य नियम जो है, नित्य जो दौर है, उस हिसाब से पूरा जीवन पूरा नहीं करना है, कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बढ़िया करना है, समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव, देन यू विल एंजॉय योर लाइफ। और कुछ ऐसी बात शायद आपके हाथ में आ जाए, इट कैन टर्न अराउंड योर लाइफ, इजंट इट? इट कैन टर्न अराउंड सोसाइटीज, इट कैन टर्न अराउंड नेशंस। इसी ताकत है क्रिएटिविटी में। तो ये थोड़ा क्रिएटिविटी भी रखना, अपने आप पर आत्मविश्वास भी रखना, संग बनेंगे सिवियर फेलियर के। जो लाइट हम देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन ने दी। एक बार सुबह में बड़ी आग लग गई और पूरी एडिसन फैक्ट्रीज जल गई। एडिसन को किसी ने बताया, वे चले सुबह में, देखा कि इट वाज अ हीप ऑफ एशेज। छोटे बच्चे को साथ में लेके गए थे और बच्चे को बताया कि गो एंड कॉल योर मदर। क्यों? शी माइट नॉट हैव सीन सच अ बिग हीप ऑफ एश इन हर लाइफ। कितने स्थिर थे। और एडिसन की पत्नी जब आई, तब वो पत्नी तो एकदम जमीन पे गिर पड़ी कि हमारी फैक्ट्री की पूरी जल गई है फैक्ट्री। एडिसन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसको स्टेबल किया। और एडिसन बोले ऊपर देख के, थैंक गॉड, ऑल माई मिस्टेक्स हैव बर्न्ड अप, आई एम कमिंग बैक एट 10, आई विल स्टार्ट अगेन। और ये इलेक्ट्रिसिटी और ये लाइट हमको दी। उन्होंने बोला कि भगवान आपका आभार, मेरी सब गलतियां जल गई। वो गलतियां नहीं थी, जब तक वे अस्तित्व में थी तब तक वे रिकॉर्ड्स थे, डेटा था। यू गॉट माई पॉइंट? जब तक वो पेपर्स थे, जब तक फैक्ट्री जल नहीं गई थी, लेबोरेटरी थी, तब तक वो सब क्या था? रिकॉर्ड्स और डेटा था। एक बार जल गई, यहां अभिगम बदल दिया, गलतियां थी, जल गई, आई विल स्टार्ट अफ्रेश। ही डिड इट एंड ही गिव दिस। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन में से ये बात सफलता के लिए सीखनी है। जब सेटबैक आए जीवन में, कोई फेलियर आए, कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए, तब ये इंट्रोस्पेक्शन करना कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार पूरा पुरुषार्थ किया था, हां, तो अब भगवान की इच्छा, जो परिणाम आए वो मुझे स्वीकार है। लेकिन अब जो परिस्थिति है उससे बाहर निकलना है, और जो तैर किया वो करना तो है ही। स्टीव जॉब्स को भी एप्पल में से निकाला गया था, पिक्सर चालू किया था, वापस एप्पल में लिया और वापस वहां से बोर्ड में आए, वहां से सीईओ बने, और क्या कुछ नहीं दिया। आईफोन दिया, आईपैड दिया, आईपॉड दिया, आईक्लाउड दिया। इट इज अ $1400 बिलियन रेवेन्यू कंपनी विच इज मोर देन द जीडीपी ऑफ 90% ऑफ द नेशंस अपॉन दिस अर्थ। और हर सेकंड में 11 आईफोन बिकते हैं, और जितने पृथ्वी पे आईफोन बिके हैं वो सब आप एक जगह पे इकट्ठा कर दो तो इट विल बी हायर देन द आईफिल टावर इन पेरिस। वे भी अपनी परिस्थिति जीवन में ऐसी थी जब खाना खाने के लिए हिंदू मंदिर में जाते थे। स्टीव जॉब्स, यही नाम का जीवन चरित्र उनके बचपन के मित्र एरिक्सन और निक बिल्टन ने लिखा है, उसमें यह बात लिखी है। तो ऐसी परिस्थिति आ जाए जब स्थिर रहना, स्वीकार लेना, भगवान में श्रद्धा रखना, थोड़ा आत्मविश्वास रखना, थोड़ा समय जाने देना, पुरुषार्थ करते रहना, बाहर निकल आते हैं। लोग बाहर निकल आते हैं। ऐसे यू बिकम अ मिलियनर यूथ। आप एक समृद्ध व्यक्ति बन सकते हैं। तो भगवान में अटूट श्रद्धा रखना, और अटूट श्रद्धा मतलब एक ही वाक्य आप ध्यान से सुनना। व्हाट इज फेथ इन गॉड? आई टेल यू जस्ट वन सेंटेंस। वो जीवन में भगवान में श्रद्धा है, और वो वाक्य है, मेरे जीवन में आज तक जो कुछ बना, अभी जो कुछ बन रहा है और आगे भी जो कुछ बनेगा, वो भगवान की इच्छा से होता है, मेरे अच्छे के लिए होता है। और अगर मैं यही अभिगम रखूं तो यही बात मेरी प्रगति और सफलता का कारण बनेगी। इसको भगवान में श्रद्धा बोलते हैं। आप माता पिता कभी अपने बच्चे का बुरा इच्छते हो? तो हम भगवान के बच्चे हैं। वयम अमृतस्य पुत्रः, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो वे तो हमारे लिए चिंतित है, हमारा अच्छा ही करना चाहते हैं। लेकिन आप ये अभिगम रखना, अ पैट इज ऑल्सो गुड इन लाइफ, अ स्लैप इज ऑल्सो गुड।
आपको जीवन में कोई कार्य के लिए प्रशंसा भी चाहिए, और अगर गलती की तो थोड़ी थप्पड़ भी चाहिए। कभी भगवान प्रशंसा दे तो आनंद कर लेना, कभी भगवान थप्पड़ दे तो कुछ सीख लेना, लेकिन दोनों जरूरी है। दिस मेक्स यू अ मिलियनर यूथ, एक समृद्ध युवान, एक समृद्ध इंसान। टॉप क्लास मैनेजमेंट गुरुज इन द वर्ल्ड दे टीच दिस। जिम कॉलिंस हैं, स्टीफन कॉवी हैं, केन ब्लैंचार्ड, ऑग मैंडिनो, एंथनी रॉबिन्स, रॉबिन स्मिथ, शिव खेरा, ये लोग बहुत बड़ी फीस लेते हैं। जिम कॉलिंस चार्ज करते हैं 1 घंटे बोलने का $100,000, $1 लाख चार्ज करते हैं। अभी तो 72 चल रहा है ना, कितना चल रहा है? चलो राउंड फिगर ले लो आप, 60 तो अभी 1 मिनट 1 लाख रुपीज, 1 सेकेंड ऑलमोस्ट 1800 रुपीज, 1800 रुपीज पर सेकेंड जिम कॉलिंस चार्ज करते हैं। और सामने विद्यार्थी नहीं बैठे, सामने बैठे होते हैं एग्जीक्यूटिव्स बैठे होते हैं जो 2000, 5000, 10,000 करोड़ का व्यवहार हर साल करते हैं। एंड दे सिट इन फ्रंट ऑफ जिम कॉलिंस विद फोल्डेड हैंड्स एंड ड्रॉप जॉ पोजीशन। कभी आप कोई सौंदर्य देखे या आश्चर्य देखें तो आप ड्रॉप जॉ पोजीशन में आ जाते, आह माय गॉड, तो इस हिसाब से बैठ जाते, आह व्हाट इज इट टॉकिंग, अद्भुत बोलते हैं। ये तो मैंने आपको भाव कह दिए। अगर आपको नेक्स्ट टाइम उनको बुलाना है जीटो में, अगर जिम कॉलिंस को बुलाना है तो हम तो मुफ्त में आते हैं, हम तो साधु संत हैं। आई डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर माई टॉक्स। मैं तो 24 साल से बोलता हूं, कभी किसी के पास एक पैसा मांगा भी नहीं और पैसा चार्ज भी नहीं किया। हाँ या ना? आगे वाले को पूछ लो, व्यवस्थापक को। ये मेरी एक प्रेम से समाज सेवा और मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और मेरे अभी प्रत्यक्ष गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की आज्ञा से मैं कर रहा हूं। तो दिस इज माई सेल्फलेस सर्विस टू सोसाइटी। लेकिन मुझे आपको ये कहना है, ये पूछना है कि $100,000 1 घंटे का चार्ज करके जिम कॉल्स बोलते क्या होंगे, जो पिछले 1 घंटे से आप मुफ्त में सुन रहे हैं। बात तो यही होती है, लेकिन वो 3 पीस सूट पहना होता है, टाई होती है, कॉलर माइक होता है, और घूमते घूमते स्क्रीन के साथ बोलते हैं, उसके चार्ज बहुत चढ़ जाते हैं। और ये भगवे कपड़े पहन के बोलते तो बोलते हाँ साधु संत को आदत होती है, बोलते रहते हैं, ठीक है। बात तो वही होती है। तो कहने की बात यह है कि ये लोग भी इतने बड़े मैनेजमेंट गुरुज, टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स को सिखाते हैं कि अगर जीवन में कोई ऐसा प्रसंग बना जो आपको मंजूर नहीं है, जो आपकी इच्छा से विरुद्ध है, तो आप ये समझ लेना कि भगवान की इच्छा से बना है, तो ही आप स्थिरता रख पाओगे। ये बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है, ये बात भगवान स्वामी नारायण ने अपने वचनामृत में कही है, ये बात हर महापुरुष के जीवन में है। Your caliber is not tested by your successes in life. Your caliber is tested how you handle failure in life. जीवन में कितनी सिद्धियां आपने हासिल की, उससे आपका कैलिबर का मापदंड नहीं है। जब जीवन में सेटबैक या फेलियर आया, तब आप किस तरह से अपने आप को संभाल पाए, उससे आपका कैलिबर निश्चित होता है। એ મારા બાપુજીએ કહ્યું કે કરોડપતિના ત્યાં જન્મ્યો, તો મેં તો સાલી વાત સાચી, મેં કીધું એ તો મારા હાથમાં નથી, મને કે બધું તારા હાથમાં છે, મેં તો હાથ તો ખાલી છે, મને કે બેટા બધું જ જીવનમાં આવી જશે, મેં તો ક્યાંથી આવશે, ક્યારે આવશે, મને કે ખૂબ કસરત કર, ખૂબ ચોપડીઓ વાંચ, તન અને મન મસ્ત હશે તો ધનના ઢગલા થઈ જશે। સાહેબ 5000 ચોપડીઓ વાંચી નાખી, અને આજે એટ એજ ઓફ હમણાં જ 5 સપ્ટેમ્બર મારો 50 વર્ષ પૂરા કર્યા અને હું વનમાં પ્રવેશ્યો છું। નીકળી જવું તો સારું, અને મરી જવું તો આવજો બધા રોવા માટે। અને આજે 100 દંડ મારીને ઘરેથી નીકળું છું રોજ, 100 dips। ખરેખર ઘરમાં નવા કપડા પહેરવા જોઈએ। મારી વાઈફને કીધું ઘરમાં નવા કપડા પહેર, કેમ? મેં કીધું તું મને ગમવી જોઈએ, ગામને ગમવી જોઈએ, આ કરવાની જરૂર। જિંદગીને
આપણે લોકો બીજાને બતાવવાનું જીવીએ છીએ. આપણને બીજાને બતાવવાનું જીવવાનું શીખવાડવામાં આવ્યું છે. સાહેબ, તમને ખબર છે, તમને 300 ધર્મ અને 3000 સંપ્રદાયો આપણા મગજની પથારી ફેરવી નાખે. તમને ખબર છે પાપ અને પુણ્યની વ્યાખ્યા શું છે? એક જ લીટીની વ્યાખ્યા છે સાહેબ. જે બીજાને બતાવવા કરો ને એ પાપ, અને પોતાને બતાવવા કરો ને એ પુણ્ય. આટલી જ વ્યાખ્યા છે. બધું ખોટું. આના જેવા થાવ સાહેબ, કોઈએ કોઈના જેવા થવાનું નથી, પણ આપણે જ ગઈકાલ કરતા આજે આપણી જાતને બેસ્ટ બનાવવાની. હું ગઈકાલે શું હતું, યસ, આજે મારામાંથી હું શું ખરાબ, બધાને ખબર પડે છે કે ડફોડ છીએ આપણે. આ દુનિયામાં સૌથી વધુ શું અપાય છે? શિખામણો. અને સૌથી ઓછું શું લેવાય છે? શિખામણો. કે આપવા લેવા વાળા બે સમજે કે આ તો બીજા માટે છે, આપણે કઈ લેવા દેવા. કેટલા પ્રશ્નો, અને કોઈ જવાબ નથી આપતું. હું આજે તમને આ બધા જ સવાલોના જવાબો કે 4-5 હજાર ચોપડીઓ વાંચી, બહુ બધા લોકોને મળ્યો, અને મેં જોયું કે હાલી જિંદગી તો બહુ સરળ છે, બહુ મસ્ત છે. આ બધા ખોટી કેસેટો વગાડે છે, આમ કરો ને ઢેકણું કરો ને પૂછડું કરો, કશું કરવાનું નહીં, મસ્ત જીવવાનું. મોત કાલ આવતું હોય તો આજ આવે, પણ જીવવું તો સાલું વટથી જીવવું. આ પાવર આપણામાં હોવો જોઈએ. જો હૈ સો હૈ, जो है सो है, मेरा है सो जावे नहीं, जो जावे सो मेरा नहीं. આ પાવર આવતો નહીં. આ તો કે પેલીએ મને ના પાડી, મરી જા ને પાર હવે લટકી જા પંખા હાથે, કાં તો ટ્રેનનો ટાઈમ થઈ ગયો જઈને હુઈ જા. માં તો ટકા જ ના આયા. નાની નાની વાતોમાં ફરિયાદ. તમને ખબર છે સાહેબ, તમે જ્યારે ફરિયાદ કરો છો ને, જેવી ફરિયાદ કરો છો ને, ઈશ્વર તમારાથી દૂર થઈ જાય છે. અને જેવી તમે ફરિયાદો બંધ કરો છો, when you accept everything in life, ઈશ્વર તમારો મિત્ર બની જાય. તમને ખબર જ નથી. મૂળ વાત શું છે કે એક લોખંડનો ટુકડો હોય ને સાહેબ આટલો, તો 10 રૂપિયા કિલો વેચાય રેલવેનો ભાડો. પણ જો એમાંથી છરીઓ બનાવવામાં આવે ને તો એના 10,000 રૂપિયા પેદા થાય. અને એમાંથી જો 100 ને ટાંકણીઓ બનાવીએ ને તો 1 લાખ રૂપિયા પેદા થાય. અને એમાંથી પણ આવી કોઈ ઘડિયાળના કાંટા બનાવીએ ને તો 10 લાખ રૂપિયા પેદા થાય. કિંમત લોખંડની છે કે ઘડતરની? તમારે ઘઉં જોઈએ તો શું ઉગાડવું પડે? ઘઉં ઉગાડવા પડે. બાજરી જોઈએ તો બાજરી, ગુલાબ જોઈએ તો ગુલાબ, કાંટા જોઈએ તો કાંટા. એનો મતલબ શું છે? તુમ ચાહતે ક્યાં હો? તમે જે ચાહો છો એ વાવો, અને જે વાવશો ઈશ્વર એ જ ઉગાડીને તમને પાછું આપશે. બોલો, હું તમને અહીં 1000 માણસોને સરસ વાત કરીને જઉં, સુખી કરવાની વાત કરીને જઉં, હસતા રહેવાની વાત કરું, તો પેલો મને જખ મારીને હસતો રાખે કે નહીં? આ કારણ છે. એનો નિયમ છે, જે જોઈએ તે કરો. આપણે એમ કહીએ તું પહેલા બધું આપ પછી હું કરું. ભગવાન કે તું પહેલા બધું કર પછી હું તને આપીશ. સાહેબ, અમદાવાદમાં એક ચાની લારી વાળી બાઈ બંગડી વાળી ગાડી લઈને ફરે, અને ભજીયા વાળો રોજના 5 લાખ રૂપિયા કમાય છે મહિને. અને આપણે કે હું શું કર્યું, ટ્રેનનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, હુઈ જા પાટા ઉપર જઈને. સાહેબ, 75 લોકોને સુસાઇડ કરતા બચાયા છે આ ગપ્પા મારી મારી. જરૂર શું છે? જરૂર એ છે કે જીવનમાં એક તાકાત, એક જોશ, એક ઉમંગ. આપણું જીવન ખૂબ મહત્વનું છે. નાના પાટેકર એક પિક્ચરમાં દર્પણમાં હાર પહેરાયો, પછી દર્પણ આગળ આરતી ઉતારે પોતાની. પછી અગરબત્તી દીવો કરી, પછી એક જણા આવ્યો કે ક્યાં કર્યો? तुम्हें पता नहीं दुनिया में मैं अपने आप की कितनी इज्जत करता हूं. આપણી ઇજ્જત આપણે કરવી પડશે. બીજો કરશે, બીજો મને સર્ટિફિકેટ આપશે કે તું ડોબો છે, બોગો છે, ગાણો છે, આવો છે, તેવો છે. नहीं, हम लाइन में खड़े नहीं रहेंगे साला, हम खड़े रहेंगे, लाइन वहीं से शुरू करेंगे. આ પાવર જોઈશે સાહેબ. જ્યાં સુખ પૂરું થાય ને ત્યાં દુઃખ શરૂ થાય, અને દુઃખ પૂરું થાય ને ત્યાં સુખ શરૂ થાય. સફળતા પૂરી થાય ત્યાં નિષ્ફળતા ઊભી જ હોય, અને નિષ્ફળતામાં ટકી જાઓ તો સફળતા શરૂ થાય. દિવસ પૂરો થાય, દિવસ પૂરો થાય ત્યાં રાત શરૂ થાય, અને રાત પૂરી થાય ત્યાં દિવસ શરૂ થાય. જન્મ પૂરો થાય ત્યાં મૃત્યુ શરૂ થાય, અને મૃત્યુ પૂરું થાય ત્યાં જન્મ શરૂ થાય. અમીરી પૂરી થાય ત્યાં ગરીબી શરૂ થાય, અને ગરીબી પૂરી થાય ત્યાં અમીરી શરૂ થાય, અને ત્યાં મારા જેવી નોટો પેદા થાય. આ વિરોધી નથી, પૂરક છે, જરૂરી છે, રિક્વાયર્ડ. તમને કે જે આ વિરોધી છે, એક જોઈએ બીજું ના જોઈએ, ઉલ્લુ બનાવે છે. તમે પેલું ઘડિયાળનું લોલક જોયું છે? બે બાજુ જાય ને, ક્યાં મરધે જઈને પાછું જાય, આ બાદ નહીં જવાનું. સાહેબ, સુખ દુઃખ, સફળતા નિષ્ફળતા, અમીરી ગરીબી, આ બધું ચાલ્યા કરવાનું. અને આની વચ્ચે
જે છે એનો સ્વીકાર, જો હૈ સો હૈ, આ જેને સ્વીકારી લે છે ને ઈશ્વર એનો મિત્ર બની જાય.